Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, if you have any question related to previous lecture that I discussed with you people, you can ask or you can contact me via my number or you can email me if you have any query. This is week number 9, and in week number 9 we have almost covered, 8 weeks. This is the first topic that we have uh, in week number 9, which is called the capital. We have different meanings of the word capital. Uh, Roundabout, we have 7 different meanings in the world of business. But here, as we are very specific, what capital is actually the amount that you invest in the business. So this is very clear that it is very different from the personal wealth that you are having. Say, for example, if you have a home, right? You have a home, this is not your capital. You have a personal car that you use personally, that is not your capital. You might be having a land, uh, that is not your capital, that is your personal wealth, right? Or other things that you are having uh, other than the amount that you have invested in the business, that is your wealth, that is your personal wealth. So capital is actually the amount that you invest in the business. For example, you have dedicated a land to your business, so that is your capital. Your car or other vehicle used for business purposes, that will be your capital. Or other products that you have invested in for business activity, or in other sense for the generation of the profit, that is called capital. So I think it must be very clear to you that what capital is. आसान भाषा में वो अमाउंट या वो फंड या वो पैसा जो आपने कारोबार में इन्वेस्ट किया हो, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जितने भी हो, 1 मिलियन हो, that is called the capital. Moving forward, uh, we have kinds of capital. We have mainly 3 kinds of capital. The first one is called the fixed capital. What it is actually, it is the portion of total capital outlay for business invested in physical assets such as factories, vehicles, and machinery that stay in the business almost permanently, or more technically for more than one accounting period. Fixed assets can be purchased and owned by business, but they can be structured as a long-term lease. देखिए, this is the first kind of the capital. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है या वो अमाउंट या वो फंड है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो उन चीज़ों में जो कि आपके साथ ही मतलब परमानेंटली वो हो, और उसी कारोबार में जब तक आप कारोबार को वाइंड अप नहीं करते तब तक आपके पास हो. फॉर एग्जांपल, you have purchased land for your business, right? So the land that you have purchased for your business, that is your fixed capital, right? व्हीकल, आप गाड़ी खरीदते हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें दैट इज कैन बी आल्सो कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है? या आप से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस पर्पसेस के लिए आप खरीदते हैं लैपटॉप, आप खरीदते हैं गाड़ी, पीसी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, और आपकी इंटेंशंस ये हो कि ये बिजनेस में जब तक बिजनेस हम वाइंड अप नहीं करते तब तक हमारे पास ही रहेंगी. सो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल. अच्छा, ये अभी फॉर एग्जांपल इट माइट बी डिफरेंट
in other cases, for example, कोई दूसरी कंपनी है वो गाड़ियाँ तैयार करती है। जिस तरह मैं पहले मैंने बात की कि एक बिजनेस ने एक गाड़ी खरीदी है और बिजनेस पर्पसेस के लिए वो यूज करते हैं। सो दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल फॉर दैट, स्पेसिफिकली फॉर दैट कंपनी। एक दूसरी कंपनी है वो गाड़ियों का कारोबार करती है, मतलब वो ये प्रोडक्ट हैं वो उनकी सेल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ फिक्स्ड कैपिटल फॉर दैट कंपनी। अगर फॉर एग्जांपल हम देख ले सुजुकी कार्स, टोयोटा कार्स, ये जो है ये वाली कंपनीज, इनके लिए ये कार जो है ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है। इसमें ये बात भी की कि या तो बिजनेस के साथ परमानेंटली हो या मोर टेक्निकली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मींस 1 ईयर आपके पास ही हो, 1 साल से ज्यादा अगर आप अपने पास रखते हो, सो दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसमें यह है कि आप अगर आप चीजें दूसरी चीजें हैं आप लीज पे खरीदते, से एक जमीन है आपने लीज पे खरीद ली 100 सालों के लिए, 50 साल के लिए, सो दैट लैंड कैन आल्सो बी कॉल्ड योर फिक्स्ड कैपिटल। Okay, if you have any question, those participants who are in room, if you have any question related to this slide, you can openly ask. We have Momin Ali, Aliza, and Humayun, I think. If you have any question, you can ask. Do you have any question? No, sir. Okay, then we will move forward. Another kind of the capital is called the working capital. Working capital can also be known as net working capital, and what it is the difference between a company's current assets, such as cash, account receivables, customers' unpaid bills, and inventories of raw materials and finished goods, and its current liabilities, such as accounts payable. आसान भाषा में वर्किंग कैपिटल क्या है? देखिए, आपने पैसा इन्वेस्ट किया पहले बिजनेस में, सॉरी ये फिक्स्ड कैपिटल में, आपने जमीन खरीद ली, फैक्ट्री बनाई, गाड़ी खरीद ली, फर्नीचर, डिफरेंट लैपटॉप से आपने खरीद लिए, पीसीज आपने खरीद लिए, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स बन गए। अभी देखें, आप अभी मेनली आपने ये फैक्ट्री किस चीज़ की फैक्ट्री खोली है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने मार्कर या पिन बनाने की जो है वो खरीदी, ये चीज़ें फैक्ट्री मशीनरी मैंने खरीदी है जिसमें मैं मार्कर्स तैयार करूंगा, जिसमें मैं बल पिन जो है वो तैयार करूंगा। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल अभी यह है कि वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स में, मतलब रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, ठीक है। In order to make marker and in order to make ball pen, you need to purchase raw material for making or manufacturing these products. तो इसमें क्या है कि वर्किंग कैपिटल में ये वो कैपिटल है जिस पे आपका कारोबार ऑन डेली बेसिस चलता हो। एक तो फिक्स्ड कैपिटल है जो कि आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीदी, वो आपके पास ये चीजें बिजनेस के वाइंड अप होने तक आपके पास ही रहेंगी। वर्किंग कैपिटल वो पैसा है, वो फंड है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो ऑन डेली बेसिस, मतलब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, उनको बेचते हो। तो इन चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट दैट you need or you are in need of purchasing the raw material on daily or weekly or monthly basis, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल क्या है? ये वो अमाउंट है जो कि आप इन्वेस्ट करते हो उन रॉ मटेरियल में, या प्रोडक्ट जो आपका मेन है, मार्कर हो या बॉल पेन हो, उनके लिए जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उनको प्रोसेस करते हो और उनको बेचते हो। सो इन दौरान जितना भी आपका खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एक तो फिक्स हो गया, वर्किंग का यहाँ पे ये लफ्ज खुद
आइडेंटिफाई करता है कि वर्किंग जो होती रहती है, ठीक है। सो जो वर्किंग डेली बेसिस पे होती रहती है और उन पे जो खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल। अदर टर्म दैट इज यूज्ड इन दिस लाइन इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? एक आपके जो है करंट एसेट्स हैं, आई बिलीव कि करंट एसेट्स आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपने ये चीज़ें पढ़ी हो। सो करंट एसेट्स क्या चीज़ें हैं और करंट लाइबिलिटीज, आई होप यू अंडरस्टैंड करंट लाइबिलिटीज एज वेल। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस और व्हेन वी माइनस करंट लाइबिलिटीज from current assets. So when we minus current liabilities from current assets, that is called your net working capital. Moving forward, this is the third kind that we have in the course is the share capital. What it is, actually it is the money a company raises by issuing common or preferred stock. The amount of share capital or equity financing a company has can change over time with additional public offerings. शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल वो है, देखें, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ा था कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप अपना फंड वो इन्वेस्ट करता है, शेयर में भी शेयर होल्डर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब आप कंपनी पे आते हो तो कंपनी वाले ये करते हैं कि कैपिटल को रेस करने के लिए, मतलब फंड्स को जमा करने के लिए, वो मार्केट में शेयर्स फ्लोट करते हैं, बेचते हैं। शेयर की कीमत 1 रुपये भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 10 भी, 100 भी, 200 भी हो सकती है। तो वो शेयर बेच के मार्केट में, जिस तरह वेयर इज द मार्केट ऑफ शेयर्स? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज is the market where you can share your sell your shares. So companies इसी तरह करती है कि वो अपना शेयर बेचती है इस मार्केट में और कैपिटल रेज हो जाता है, राइट? So what it is, share capital is the money a company raises by issuing common or preferred share stock. ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कॉमन क्या है, प्रेफर्ड शेयर्स क्या है। लेकिन आप जस्ट ये अपने जहन में रखिए कि शेयर कैपिटल वो कैपिटल है या वो फंड है या वो पैसा है जो कि कंपनी के पास आता है शेयर को मार्केट में बेचने के बाद, ठीक है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और इक्विटी, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। कंपनी इसको फिर मतलब चेंज भी कर सकती है कि इन सेंस अभी मुझे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीस की ज़रूरत है तो मैं उसी के मुताबिक शेयर में फ्लोट कर लेता हूँ। 1 साल 2 साल बाद मुझे और पैसों की ज़रूरत है तो मैं और शेयर्स भी मार्केट में एज ए कंपनी में फ्लोट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि कंपनी के पास ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जिसके थ्रू ये पैसे जो है रेस कर सकती है। अच्छा, ये पैसे जब ये शेयर्स फ्लोट कर लेते हैं मार्केट में और पैसा जो आता है ना, वो कंपनी को चलाने के लिए वो यूज करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम नेस्ले का एग्जांपल ले लें तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। जब भी इनको पता लगता है कि हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जब भी बढ़ता है बिजनेस तो उनको अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उनके पास हल क्या है? इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फंड, इज टू सेल द शेयर्स। वो क्या करते हैं? शेयर्स बेचते हैं मार्केट में, जिससे पैसा आता है। पैसा कहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं? वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कारोबार को रन करने में। This is all for today's lecture. If you have any question or any